Hello student, you know that your maths objective paper will be held on Monday, that means 2nd August. Okay, now firstly, best of luck for your all papers and let's start your revision work. Now there will be 4 or 5 types questions in your question paper. Okay, like MCQ, fill-ups, true false, match them, etc. All questions will be multiple choice and all the questions are divided into different parts. You have given 2 or 3 options according to your question in your question paper. Okay, now you choose any one option from the given options. Now in question number 1 you have given your objective paper revision work. Okay, now in question number 1 you have given tick the correct answer and your today's date is 1 August, not July. Okay, now in A part you have given if 78 minus 49 is equal 29, then 29 plus 49 equals. Now you have given your equation in subtraction form and you have given your two numbers in addition form. That means last two numbers you have given in addition form. Now what is the sum of the given numbers? Okay, now you have given in your option number 1 is 29, 2 is 78 and 3 is 49. आपको इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है. Now 29 plus 49, 29 plus 49, that means you have given last two numbers. Now according to addition fact your answer is 78. Okay, addition fact subtraction fact पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 78 होगा. दैट मीन्स लास्ट टू नंबर्स को ऐड करने पे हमें हमारा फर्स्ट नंबर मिलेगा 78. ओके, दैट मीन्स योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नॉट टिक द सेकेंड ऑप्शन. ओके, now in B part you have given dash minus 0 is equal 80. We know that when we subtract 0 to the any given number then we get our answer. That means the number itself. हम जब भी किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो हमें हमेशा वही नंबर ही मिलता है. That means here when we put 80 minus 0 then we get 80. Okay, now your option number 3, that means 80 is the correct option. Okay, and 0 and 74 is the wrong option. Now in C part you have given when we subtract 1 from a number we get. जब हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास है 4 minus 1, then you get 3. 3 is the just before number of the given number 4. Okay, हमें क्या मिलता है just before number. That means your option number 1 is 0, option number 2 is just after number and option number 3 is just before number. Now just before number is the correct option. That means tick the third option. Okay, now in fourth number, that means D part, you have given Riya has 70 sweets. How many more sweets do she need to make 100? रिया के पास 70 स्वीट्स हैं. How many more sweets do she need to make 100? दैट मीन्स उसको 100 बनाने के लिए स्वीट्स को कितने और स्वीट्स की ज़रूरत होगी ये बताना है. नाउ शी हैज़ ओनली 70 स्वीट्स. नाउ फॉर मेकिंग 100 वी सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 100. हम लोग क्या करेंगे, उसके पास 70 स्वीट्स हैं, उसमें से अगर उसको 100 बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 100 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, नाउ 100 minus 70 is what? 100 minus 70 is 30. Okay, now you use rough side for your subtraction work. Now 100 minus 70 is 30. Okay, now 100 minus 70 is 30. Okay, that means your option number second is the correct option. Okay, 30. Now in the E part you have given the difference between any two consecutive numbers.
किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस करने पे नंबर्स इज़ ऑलवेज, तो क्या होता है, नंबर इज़ ऑलवेज, नंबर क्या आते हैं जो भी हम लोग उसको जब डिफरेंस होता है, हम लोग जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स तुरंत पहले और उसके तुरंत बाद का नंबर, जैसे जस्ट लाइक 3 and 4, ओके। जैसे 3 और 4 नंबर है, ये तुरंत अगल बगल के नंबर हैं, तो इन नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी ऑलवेज गेट 1, ओके, बिकॉज जस्ट लाइक 2 - 1 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द correct option, okay. Now take your first option. Now in second number you have given fill in the blanks. Now in A part you have given 7 plus 8 plus 6 is equal 7 plus 8 plus dash. Now you have given in your fill-ups 3 options, okay, for your answer. आपके आंसर के लिए आपके fill-ups में भी 3 options दिए जाएंगे, आपको बस क्या करना है, यहाँ टिक करना है, यहाँ पे फिल नहीं होगा, ओके, बिकॉज योर पेपर इज़ ऑनलाइन पेपर, ये आपका ऑनलाइन पेपर है, इसलिए सिर्फ उसमें टिक लगेगा। इज इट क्लियर? नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन 7 plus 8 plus 6 इज इक्वल 7 plus 8 plus 6, ओके। नाउ दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ टेक योर सेकेंड ऑप्शन 6, ओके, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द एडेंट्स इन एनी ऑर्डर, अगर हम लोग एडेंट्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमें हमेशा सम क्या मिलता है, ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल मिलता है, ओके। नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन डैश -1 इज इक्वल 100, डैश -1 वी नो दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर देन वी गेट जस्ट बिफोर नंबर, जब भी हम लोग किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें उसके तुरंत पहले का नंबर मिलता है, दैट मीन्स यहाँ तुरंत बाद का नंबर होगा। नाउ व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 100, 100 के बाद क्या आता है, 101, ओके। नाउ दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ 100, बी ऑप्शन इज़ 99 एंड सी ऑप्शन इज़ 110, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 101 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, okay. Now in C part you have given 98 plus 1 is equal dash. We know that when we add 1 to the any given number then we get just after number of the given number. जब भी हम लोग किसी भी नंबर में 1 को प्लस करते हैं तो हमें उसके तुरंत बाद का नंबर मिलता है, माइनस करने पे तुरंत पहले का मिलता है, और क्या होता है, प्लस करने पे तुरंत बाद का नंबर मिलता है, ओके। तो 98 plus 1 is 99, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ टेक योर सेकेंड ऑप्शन 99. नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, जब भी हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं वी गेट द नंबर डैश द गिवन नंबर, तो हमें दिए गए नंबर का कौन सा नंबर मिलता है, योर ऑप्शन नंबर 1 इज़ जस्ट बिफोर नंबर, जस्ट आफ्टर और बिटवीन, आपको तुरंत पहले का नंबर मिलता है, तुरंत बाद का नंबर मिलता है, या बीच का नंबर। वी नो दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर में से अगर हम लोग 1 को माइनस करते हैं तो हमें जस्ट बिफोर नंबर मिलता है, ओके। वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव गिवन मैच द फॉलोइंग। नाउ मैच द फॉलोइंग इज़ योर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओके। मैच द फॉलोइंग में भी आपका ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहेगा। नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन 12 × 9 इक्वल्स, नाउ आपके क्वेश्चंस इसमें बना के भी आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने पढ़ा है, टेबल पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं, फिलअप्स में भी, मैच देम में भी, टिक द करेक्ट में, या ट्रू फॉल्स, किसी भी टाइप्स में आपके कोई भी क्वेश्चन बना के आएंगे बाय सेल्फ स्टडी फ्रॉम योर बुक एंड कॉपी, बुक और कॉपी से मिला के आएंगे, ओके। नाउ योर ए पार्ट इज 12 × 9 इक्वल्स 12 9s are what? We know that firstly you read the table of 12, 12 9s are 108, okay. Now your first option is the correct option 108, and 208 and 98 is the wrong option, okay.
Now in B part you have given 100 plus 4 equals. We know that 100 plus 4 is what? You use rough side for your addition work. 100 plus 4 is 104. Okay. Now in your option you have given 96, 1004, 104. Now third option is the correct option. Okay. Now in C part you have given dash is the you have given plus is the sign of. प्लस किस चीज़ का साइन होता है? इसको किस चीज़ का साइन बोलते हैं? प्लस बोलते हैं ना. तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवाइड. किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एडिशन के लिए यूज़ होता है. नाउ योर ए ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन क्रॉस इज द साइन ऑफ. ये किस चीज़ का साइन है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड. Now this is the sign of multiplication. Okay. Now your second option is the correct option. Second पे आपको टिक लगा देना है. Is it clear? Now your question number 4 is write true or false. Write true or false है. इसमें आपको true और false fill नहीं करना है. आपको उसमें भी options दिए होंगे. अगर true है तो true पे टिक करेंगे, false है तो false पे टिक करेंगे. Okay. Now your A part is when we subtract we simply take away. जब भी हम लोग subtract करते हैं तो हम लोग उसमें से take away means निकाल देते हैं. Is it true or false? True. Okay. Why? take away means निकालना means remove करना. तो ये correct है. जब भी हम लोग subtraction करते हैं तो numbers को suppose करिए 4 minus 3 दिया है तो 4 में से 3 को क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं, remove कर दे रहे हैं. Okay. take away. That means true. Your first option is true. So you tick your option number 1 true. Okay. अगर आपको फिल नहीं हो पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिर्फ टिक कर देना है ट्रू. यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वहाँ पे फिल नहीं होता है तो. ओके. नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन 28 प्लस 12 इज इक्वल 40. ओके. हम लोग जानते हैं कि जब भी 28 में 12 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 40. 28 एंड 12 आर कॉल्ड एडेंट्स. हम लोग जानते हैं कि 28 और 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेंट्स बोलते हैं. ओके. एंड 40 इज़ कॉल्ड द डिफरेंस. जो 40 आया है उसको हम लोग क्या डिफरेंस बोलेंगे? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज द आंसर इज़ कॉल्ड सम. ओके. जब भी 2 नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके आंसर को क्या बोलते हैं? 40 को क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे. दैट मीन्स योर B option, second option is the correct option, false. Okay. Now tick your second option. Okay. Now in C part you have given when we added 3 numbers in any order. अगर हम किसी भी 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं the sum will be different. तो हमारा सम क्या अलग अलग आता है? सपोज़ करिए आपको दिया है 1 + 2 + 3. तो इसको आपने ऐड किया तो क्या हुआ? 1 + 2 3, 3 + 3 6. अगर आपने इसको इस तरीके से राइट कर दिया 1 + 2 + 3. नाउ 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. That means since both answers are same, therefore your statement is false. Okay. Now tick your second option, false. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐड के फॉर्म में अगर कितने भी नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रखें तो हमें हमेशा उसका सम जो है वो सेम मिलेगा, ना कि डिफरेंट मिलेगा. ओके. नाउ योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डी नंबर. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स. जब भी हम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं द आंसर इज़ कॉल्ड डिफरेंस. तो उसके आंसर को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं. यस, उसके आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस ही बोलते हैं. सो योर first option is the correct option. That means true. Okay. Now student, you prepare your objective type questions from your book and copy. आपको objective types के questions book और copy से prepare करने हैं. by self study, खुद के द्वारा उसको prepare करना है. आपको खुद से prepare करना है. ज़रूरी नहीं है जो book में ट्रू फॉल्स दिया है, फिलअप्स दिया है उसी में से आए, वो बना के भी आएगा. ओके. एंड ईच नंबर हैविंग 0.5 मार्क्स. हर नंबर के पास 0.55 मार्क्स होंगे. ओके. एंड यू हैव टोटल 40 क्वेश्चंस इन योर
ऑब्जेक्टिव पेपर, मैथ्स ऑब्जेक्टिव पेपर। आपके मैथ्स के ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।